In previous lectures, we were discussing about periodic trends in physical properties, right? So in that we have learnt about atomic radius, ionic radius, then after that ionization enthalpy and how it changes across period and down the group in periodic table. Now next periodic trend is electron gain enthalpy. Okay, and in this also we will see how it changes, electron gain enthalpy changes when we move in periodic table from left to right across period and when we move down the group from top to bottom. Okay, so let us start with the next periodic trend, and that is electron gain enthalpy. Okay, it is denoted by delta EGH, EG for electron gain, H for enthalpy or heat change. Okay, now what is meant by electron gain enthalpy? Now see the definition, friends. It is, okay, you can note down this enthalpy change that takes place. Enthalpy change that takes place when electron is added to, you can say, neutral or isolated gaseous atom. Okay, to an isolated gaseous atom in ground state. That is called what? Electron gain enthalpy. Now see the definition. What is mean by this definition? Enthalpy change means heat change occur when electron is added to isolated gaseous atom in ground state. जब भी हम इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो जो हीट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Now this electron gain enthalpy value may be positive or negative. Okay, जब भी हम इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट में, एटम में ऐड करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो एक तो क्या होगी, हीट विल गेट रिलीज्ड और हीट विल गेट एब्सॉर्ब. In which case heat get released or heat gets absorbed, that also we will see with example. But remember here that delta EGH value may be positive or negative. जैसे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी is always positive because we have to supply the energy in order to knock out the electron from isolated gaseous atom. But in this case, when we add electron to any isolated gaseous atom, heat either released or absorbed. Okay, so we'll see. Now note down the definition first. It is denoted by delta EGH, and we can write chemical equation for it as X gaseous plus electron. It gives X minus gaseous. For this, heat change can be shown by delta EGH, electron gain enthalpy. Okay, so this is the definition and this is chemical equation general. So note down after that the point delta EGH may be positive or negative. Note down this point also, delta EGH may be positive or negative depending on whether the process becomes endothermic or exothermic. देखो, delta EGH may be positive or negative depending on whether the process is endothermic or exothermic. अब endothermic उस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों जिस प्रोसेस में, देखो, अगर endothermic है, endothermic, whether the process is endothermic or exothermic. Endothermic is the process in which heat is absorbed, and exothermic is the process in which heat is released. The process in which heat is released is called exothermic process, and the process in which heat is absorbed is called endothermic process. ठीक है, so note down these points also. Delta EGH may be positive or negative. अगर किसी एलिमेंट में या एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो
और उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब एंड इन दैट केस डेल्टा EGH इज पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा H जब आप निकालते हो तो डेल्टा H निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, H2 माइनस H1। देखो अगर समझो मेरे पास एक कोई भी एटम जिसकी कुछ पर्टिकुलर हीट है, H1 कुछ तो भी है इनिशियल वैल्यू, समझो मेरे पास है 120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसमें अगर मैंने कुछ हीट ऐड कर दी तो H2 की वैल्यू ज्यादा हो गई। समझो सपोज, लेट अस सपोज इफ H2 becomes more than 120 like 140 kilojoule per mole, then what is delta H? Delta H is equal to H2 minus H1. 140 minus 120 means 20 kilojoule per mole. Okay, so this value becomes positive. So we can say that this process is endothermic because what is the change in enthalpy? It is positive. ठीक है, सो H1 और H2 उसकी हीट आपको पता होती है और उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो whether the process is endothermic और exothermic। समझो मेरे पास है H1 की वैल्यू 120 और H2 की वैल्यू कम हो रही है, 80 हो गई। It means heat is released when electron is added to atom. Heat is released, okay, 120 थी, फिर 80 हो गई, 90 हो गई, right? So heat is released, H2 value becomes lower than H1. So in that case delta H will be negative. So the process will be exothermic because heat is released. Okay? So if process is endothermic, delta H value is positive, and if the process is exothermic, delta H value will be negative. Delta EGH, electron gain enthalpy process. Okay? So this is what about the definition of electron gain enthalpy and chemical equation with its symbol. Delta EGH may be positive or negative डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन और केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं अक्रॉस पीरियड और डाउन द ग्रुप हाउ दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंजेस। ओके, अब देखो आपके पास है एलिमेंट्स, आपके सामने देखो पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल वी नो दैट लेफ्ट साइड एलिमेंट्स आर मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट दे आर मेटल, and the elements which are present at the extreme right they are non-metal except noble gases, right? अब देखो कौन से atoms as we go from left to right, okay, as we go from left to right, what happens? As we go from left to right, what happens? Atomic size goes on decreasing, atomic size छोटी होती जाती है। okay, so as we move from left to right, atomic size decreases. Effective nuclear charge, we know that effective nuclear charge increases, right? Effective nuclear charge बढ़ता है। अगर उस केस में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो वो इजीली कैप्चर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। 17 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन आप इजीली ऐड कर सकते हो बिकॉज आफ्टर गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन द सिस्टम becomes stable, this atom becomes stable, it gains stable electronic configuration। ठीक है, तो ये इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो हीट रिलीज होती है। ओके, जब भी हीट रिलीज होती है तो हीट कम हो जाती है, डेल्टा एच बिकम्स नेगेटिव, सो दे हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स they have group 17 elements have, note down this point, have very high negative values of electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy means the process is exothermic in this case. Note down this point. Group 17 elements have very high negative values of electron gain enthalpy, means delta H value becomes negative in that case. The process is exothermic. ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक। क्यों? देखो मैंने कहा अभी सिस्टम स्टेबल कब होती है? जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब फ्लोरीन है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी कुछ तो भी एंथैल्पी होगी, हीट कंटेंट होगा, ठीक है, उसकी हीट कंटेंट हम H1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसकी हीट कंटेंट आपको पता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आप, उस केस में जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बहुत हीट रिलीज होती है। इसका मतलब पहले हीट जो थी फिर वो हीट नहीं रहती, हीट कम हो जाती है। सो H1 वैल्यू becomes greater than H2, or in other words H2 value becomes less than H1. So if H2 is less than H1, delta H क्या होगा? Delta H is equal to, we know that difference between final minus initial heat. So H2 अगर वैल्यू लेस है और H1 मोर है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। So delta H becomes more negative. In which case, in group 17 elements, because group 17 elements are ready to gain electrons to attain the stable electronic configuration, and hence in that case this electron gain enthalpy value is very high negative, okay. So the elements of group 17 have very high negative values of electron gain enthalpy, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया about group 17 elements, that is what about the halogens. Now we will see about what group 18. Now you know that group 18 elements, that is noble gases, they have stable electronic configuration. In that case, can you add electrons to them? Yes, you can add, but after adding, what will you get? Unstable system, because they have stable electronic configuration, and in that situation you are adding one electron. If you will add one more electron to it, what will happen? Now see, for example, I'll take the example of neon. Now neon is the example, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 4 प्लस 4 मैं दिखाता हूं, ये 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस सेंट्रल, ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो वो भी थर्ड शेल में ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है उसमें, तो स्टेबल का आप अनस्टेबल कर रहे हो तो हीट क्या होगी? पॉजिटिव। यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम, यू हैव टू सप्लाई हीट टू द सिस्टम, ओके। एंड व्हेन यू आर एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द outermost shell, increase number of shell, what will you get? There is no attraction between nucleus and outermost electron because of the shielding effect of inner electrons. Inner electrons का यहाँ पे shielding effect है, ठीक है। inner electrons का shielding effect है, तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, ओके। और अगर इसका अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा फिर? द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। सो यू आर मेकिंग नियॉन एटम, you are converting neon into sodium 281, and that sodium is ready to give up the electron, right? सोडियम कौन से सिचुएशन में होता है? वो देने की सिचुएशन में होता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है अपना, राइट? सोडियम वांट टू अचीव ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड इफ यू आर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन टू नियॉन, it will convert stable system into unstable system. So in that case you have to supply more heat to the system. तो आपको उसमें heat add करने की जरूरत है. It means delta H is positive. The process is endothermic. Okay. So what are the values of delta EGH for 18 group elements of group 18 have high positive values. Elements of group 18 or group 18 elements have very high positive values, very high positive values of delta EGH और डेल्टा H। एंथैल्पी चेंज उसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि H1 में जो भी हीट थी वो स्टेबल था, ठीक है। आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश की, राइट? यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल सिस्टम, यू हैव टू सप्लाई हीट, so H2 becomes more. Initially जो हीट थी उनकी नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जरा H1 उससे ज्यादा हीट होगी क्योंकि we are supplying now extra heat to it. So H2 becomes more, and if H2 becomes more, the difference between H2 minus H1 becomes positive. That is, the process is endothermic. So more heat we have to add to such system, okay. And
in other words we can say that group 18 elements have very high positive values of delta EGH. तो आपको बहुत हीट देनी पड़ती है और फिर वो इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का कन्वर्जन कर रहे हो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो उस केस में डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड कॉन्वर्सली ग्रुप 18 एलिमेंट्स दे हैव वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब और ग्रुप एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ग्रुप फर्स्ट। अब ग्रुप फर्स्ट के बारे में क्या है, देखो, नोट डाउन दिस पॉइंट फर्स्ट अबाउट ग्रुप 18 एंड ग्रुप 17. Now what about the group first, that is group of alkali metals. Group of alkali metals. Alkali metals में क्या होगा, देखो आप ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप फर्स्ट के, आपको पता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि हमने देखा, ये अगर यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन देखा तो ये सोडियम का है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम का, 1s2 2s2। सोडियम अगर लिया हमने तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो आप थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए आपको, राइट। हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है या नहीं। सबसे पहले इसकी टिपिकल प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली बिकॉज़ दे आर मेटल्स। And what is the tendency of metal? To lose electrons naturally. But suppose if electron is added to sodium, will it gain that electron? It may gain electron, okay? लेकिन इसके natural tendency के अपोज में है वो, okay? Still you are adding the electron to it. If you are adding electron to it, it becomes stable 1s2 2s2 p6 and 3s2, ठीक है। तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन लेस नेगेटिव, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, जनरल टेंडेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसी टेंडेंसी नहीं है ग्रुप 17 एलिमेंट जैसी। ग्रुप 17 एलिमेंट्स एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स नेचुरली, बट इन दिस केस मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज अप इलेक्ट्रॉन एंड देन अचीविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट सपोज इलेक्ट्रॉन, इफ सोडियम गेन्स इलेक्ट्रॉन, व्हेन सोडियम गेन्स इलेक्ट्रॉन it will change delta EGH negative, means H1 is more than H2, okay, H1 is less than H2, ठीक है। अब H1 और H2 सॉरी H1 डेल्टा EGH और डेल्टा H इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन H2 माइनस H1। H2 और H1 की वैल्यूज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, अगर डेल्टा H2 की वैल्यू कम है और H1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। H2 कम है तो ये स्टेबल हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, क्योंकि स्टेबल होगा। तो हीट रिलीज होगी तो H2 की वैल्यू क्या होगी, पहले जो हीट थी वो ज्यादा, और हीट रिलीज होने के बाद जब आप हीट मेजर करोगे सोडियम की, फिर क्या होगा, it becomes less because heat is released. So H2 is less and H1 is more, so the value becomes negative. But the natural tendency of sodium is to lose up electron, okay. So in this case also the value is negative for group first, that is alkali metals. The value is negative but less negative. So you have to note down this point. Why less negative? Because they have natural tendency to lose electron, and in this case we are adding electron to it, okay. So delta Eg values, the values, write down point. Alkali metals, that is group first metals. Alkali metals have very low negative values of delta EGH, that is electron gain enthalpy. Note down this point also. Alkali metals have
very low negative values of electron gain enthalpy. Okay, what is the reason? We have discussed. ठीक है, क्योंकि अल्कली मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन उस केस में आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद भी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, लेकिन उनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या थी? टू लूज अप इलेक्ट्रॉन. ओके, सो व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन टू देम, energy will be released or heat will be get released, and after releasing heat, H2 value becomes less than H1 and overall delta H becomes negative. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अल्कली मेटल्स के बारे में आपको पूछते हैं क्वेश्चन, आपको पूछ सकते हैं अल्कली मेटल्स के बारे में. दैट इज ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, दे हैव डेल्टा EgH वैल्यू वेरी लो नेगेटिव. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH फॉर ग्रुप 17? फॉर ग्रुप 17 एलिमेंट्स delta EgH value becomes very high negative. And what about the group 18 elements, that is noble gases? They have very high positive values of electron gain enthalpy. Okay, तो ये हमने डिस्कस किए ये पॉइंट्स. ठीक है, तो ये ग्रुप का हमने डिस्कस किया दोस्तों. अब हम देखते हैं, देखो ये तो हमने एलिमेंट्स देखे, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट और 18 ग्रुप एलिमेंट. अब हम देखते हैं अक्रॉस पीरियड और डाउन द ग्रुप. ठीक है, अक्रॉस पीरियड क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है? अक्रॉस पीरियड क्या होगा बोलो? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट? तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल्स, तो इनकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, from left to right across period, left to right across period, delta EgH value becomes more and more negative, more and more negative. ठीक है, so across period from left to right, when we move, delta EgH value becomes more and more negative, and it is most for the case of fluorine. देखो अब उसमें भी जिसकी साइज कम होगी, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं वैसे एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है. तो उसके लिए डेल्टा EgH वैल्यू क्या होगी फिर? हाईएस्ट नेगेटिव. तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है. ठीक है, so this is what about the electron gain enthalpy. As we move from left to right, electron gain enthalpy values becomes more and more negative. ठीक है, as we move from left to right across period, general trend देख रहे हैं हम. Generally as we move from left to right in a periodic table, the delta EgH value becomes more and more negative. ठीक है, ये हो गया across period. Down the group बोलो मुझे आप. Down the group, what will happen? Down the group, you know that as we move down the group, atomic size increases. atomic size क्या होती है? बढ़ती है. लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, और इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है. ठीक है, तो उस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा? अल्कली मेटल्स में ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, तो ग्रुप में क्या होगा बोलो? इन ग्रुप व्हाट विल हैपन? इन ग्रुप एज वी ऐड इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव. तो ग्रुप फर्स्ट में आपने देखा, इन ग्रुप फर्स्ट डाउन द ग्रुप डेल्टा EgH वैल्यू becomes less and less negative. ठीक है, लेस एंड लेस नेगेटिव. सिर्फ पॉजिटिव आपको इतना ही पता होना चाहिए. पॉजिटिव किस केस में है? इन द ग्रुप 18, because they are not in situation or condition to accept electron, and if you are adding electron in that situation to them, what will happen? Electron goes to higher principal shell and you are making the system unstable, so you have to supply heat externally, and in that case the process is endothermic. Okay, and the delta EgH value becomes very high positive. ठीक है, as we move down the group
in periodic table, delta EGH value becomes less and less negative, बहुत ही कम नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा, अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड एलिमेंट्स है, अल्कली मेटल्स लेफ्ट साइड एलिमेंट्स है। ठीक है, उनकी साइज कैसी है, बड़ी है, और हैलोजन्स की हैलोजन जो फैमिली है उनकी साइज कैसी है, छोटी है। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेस, सो द वैल्यू बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। तो उल्टा अगर आए तो क्या होगा, अगर साइज इंक्रीज होते साइड में हम जाएंगे तो डेल्टा जीएच वैल्यू क्या होगी, लेस एंड लेस नेगेटिव। वैसे ही ग्रुप में है, ग्रुप में साइज बढ़ती जाती है जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, so the delta GH value becomes less and less negative. If we are going from atomic size larger to lower, larger to less, okay, as we move from left to right, atomic size goes on decreasing and the value becomes more and more negative. Conversely, if you move from that side, from lower to higher, अगर atomic size as we move down the group atomic size increases, तो क्या होगा फिर, it becomes less and less negative. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने जनरल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस पीरियड, डाउन द ग्रुप, अबाउट अल्कली मेटल्स, अबाउट ग्रुप 17 एंड अबाउट नोबल गैसेस। ओके, so note down this point. Note down these points. So this is what about the electron gain enthalpy. स्टूडेंट्स आपको कुछ एक्सेप्शन भी है, अब उसमें भी ग्रुप में देखो, ये आपको 12th में है, ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन हमने कंपेयर किए, तो ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन बोथ बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर बिलोंग टू 16 ग्रुप एंड फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग्स टू 17 ग्रुप। तो उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन की एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें क्लोरीन में ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन में 3 शेल है, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ठीक है, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ओके, तो थर्ड पीरियड में इसका मतलब है क्लोरीन में 3 शेल है, आपको होता है 2,8,7, तो थर्ड शेल में आप इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर एटॉमिक साइज छोटी है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि थर्ड शेल में आपको पता है 3s 3p और 3d सब शेल होते हैं। लेकिन अगर 2 शेल है एलिमेंट के पास, फ्लोरीन में या ऑक्सीजन में 2 ही शेल है, बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, और 2 शेल है यानी सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल पॉसिबल है, 2s 2p। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो 2p में ही ऐड करना होगा, 2d वहां पे नहीं है। लेकिन क्लोरीन या सल्फर में 3s 3p और 3d भी वैकेंट है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p2 और इसका 3s2 3p5 है, तो दोनों केस में 3d वैकेंट है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर देखा तो सल्फर और क्लोरीन की मोर नेगेटिव होती है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, वो 12th में है आपको। ठीक है, सो फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी देन सल्फर। ये एक्सेप्शन 12th में हम डिस्कस करेंगे। जनरली आपको यहाँ पे इतना ही पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, and as we move from left to right across period, what are the changes in electron gain enthalpy, and as we move down the group from top to bottom, what are the changes in electron gain enthalpy। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे डेफिनेशन और डेरिवेशन भी हमने देखा, और डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके।